अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, डिस्क्राइब वाटर इन बेसन्स। आंसर इज टाइप्स ऑफ बेसन्स। फर्स्ट वन इज रिवर बेसन, drainage areas for river and stream. Next is watershed, areas separating river basin. Next is lake basin, depressions holding freshwater lake. Next is ocean basin, large depression holding saltwater ocean. Next is endorheic basin, closed basin with no outlet. Characteristics: topography, basin shape, size and slope. Hydrology, water flow, depth and quality. Geology, underlying rock and sediment. Climate, precipitation, evaporation and temperature. Water cycle processes: infiltration, water seeps into soil; runoff, water flows over land; evaporation, water vaporizes; transpiration, plants release water vapor; precipitation, water falls as rain, snow or hail. Water storage: surface water, lakes, rivers, reservoirs; groundwater, aquifers and underground storage; soil moisture, water held in soil. Importance: water supply, basins provide drinking water; irrigation, agriculture relies on basin water; hydroelectric power, basins generate electricity; ecosystem support, basins sustain aquatic life; and flood control, basins regulate water flow. Examples: Amazon River Basin, South America; Mississippi River Basin, which is present in North America; Lake Baikal Basin, Russia; Indian Ocean Basin, Asia, Africa and Australia; and Great Lakes Basin, North America. Next question is, describe the ways of nitrogen fixation. What is nitrogen fixation? Nitrogen fixation convert atmospheric nitrogen into usable forms for living organism. बच्चों आपको बताइए, जैसे जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में जो है हमारे पास सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है गैस है वो नाइट्रोजन है, ठीक है। अबाउट 78% प्रेजेंट होती है। बट जो प्लांट्स होते हैं या लिविंग मैनली प्लांट्स, उनको जो नाइट्रोजन चाहिए थी है वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहले उसको हम क्या करते हैं कि जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको यूटिलाइज कर सकें। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबिया लेग्यूम सिम्बियोसिस, बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। जो बैक्टीरिया बच्चों लेग्यूम्स की रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं वो करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्रैंकिया एक्टिनोराइजल सिम्बियोसिस, बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल ऑफ एक्टिनोराइजल प्लांट्स। साइनोबैक्टीरिया, फ्री लिविंग एंड symbiotic bacteria, and azotobacter, free living bacteria. Non-biological nitrogen fixation, atmospheric lightning, electrical discharges convert nitrogen to nitrogen oxides. ओके जब लाइटनिंग होती है तो बच्चों उससे कह रहा है कि उसमें भी क्या होता है कि जब वो क्या कर देता है, जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है वो नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, हैबर बॉश प्रोसेस, अमोनिया प्रोडक्शन। जो हमारे पास हैबर प्रोसेस है उसमें हम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। combustion, fossil fuel burning release nitrogen oxide, and volcanic activity. Geological processes release nitrogen compounds. Other methods, nitrogen fixing fungi होते हैं like mycorrhiza fungi, nitrogen fixing algae like cyanobacteria, and inoculation, introducing nitrogen fixing microorganisms. What is the importance of nitrogen fixation? For agriculture, nitrogen fixation enhance crop yield, ecosystem supports plant growth and diversity, and environmental balance, maintain nitrogen cycle. Examples are soybeans and rhizobia, peanuts and bradyrhizobium, cyanobacteria in rice paddies, azotobacter in soil. Next question is,
Give the role of decomposers in nutrient cycle. Decomposers, microorganisms, fungi, and detritivores play a crucial role in nutrient cycling. Decomposition process. Break down organic matter, dead plants, animal waste. क्या करते हैं सबसे पहले बच्चों जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल है ना लाइक डेड प्लांट्स या डेड एनिमल्स उसको ये ब्रेक डाउन करते हैं देन रिलीज न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर लाइक कार्बन नाइट्रोजन फास्फोरस को रिलीज करते हैं एंड कन्वर्ट कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर फॉर्म nitrogen nutrient cycling roles nutrient release decomposers release nutrients back into environment carbon cycle decomposers convert organic carbon into carbon dioxide nitrogen cycle decomposers convert organic nitrogen into ammonia nitrate and nitrite phosphorus cycle decomposers release phosphorus from organic matter types of decomposers की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया है हमारे पास फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया fungi, for example, mycorrhizal fungi, detritivores, for example, earthworms and millipedes, insects, for example, beetles and flies. Ecosystem benefits nutrient availability decomposers make nutrient available for plant, soil fertility decomposers improve soil structure and fertility. अच्छा बच्चों जब ये डिकम्पोजर्स किसी भी डेड प्लांट या एनिमल को डिकम्पोज करते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना वो साइल में भी ऐड हो जाते हैं तो वो साइल जो है फर्टाइल हो जाती है ठीक है और कुछ जो न्यूट्रिएंट दोबारा एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाते हैं इकोसिस्टम बैलेंस डिकम्पोजर्स रेगुलेट न्यूट्रिएंट फ्लो एंड वेस्ट मैनेजमेंट डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट एग्जांपल्स इंक्लूड composting decomposers break down organic waste soil formation decomposers contribute to humus formation sewage treatment decomposers break down organic matter decomposers are essential for maintaining nutrient balance and ecosystem health. Next question is what is productivity? Describe productivity in desert ecosystem. Productivity refers to the rate at which ecosystem produce biomass or organic matter through photosynthesis and other processes. यार बच्चों प्रोडक्टिविटी से क्या मतलब है हमारा कि वो रेट जिस से जो इकोसिस्टम है बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस और बाकी प्रोसेसेस के थ्रू तो प्रोडक्टिविटी की टाइप्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप्स हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ कार्बन फिक्सेशन बाय प्लांट्स and secondary productivity rate of biomass production by consumers. Next is desert ecosystem productivity. Despite harsh conditions, desert ecosystem exhibit unique productivity characteristics. Limited vegetation, cacti, succulents and drought-resistant plants. तो अगर हम जो डेजर्ट प्लांट्स उनकी बात करें एक तो जो वेजिटेशन है वो लिमिटेड होती है लाइक कैक्टाई कुछ सक्यूलेंट प्लांट्स वगैरह वहाँ पे होते हैं लो रेनफॉल होती है वाटर स्कैरिसिटी लिमिट प्लांट ग्रोथ एंड हाई टेम्परेचर एक्सट्रीम हीट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी i.e. 100 to 500 gram per meter square per year and cressulation acid metabolism cam photosynthesis adaptation for water conservation secondary productivity herbivores, insects, reptiles, and mammals exploit plant resources. Decomposers microorganisms break down organic matter. Factors influencing productivity are rainfall, temperature, soil quality, and sunlight intensity. Examples of desert productivity Sonoran Desert, USA, Saguaro cactus, Sahara Desert, which is present in Africa, acacia trees, Mojave Desert, USA, Christos bush, Atacama Desert, Chile, lichens and algae. Adaptations: drought tolerance, deep roots for water access, camp photosynthesis, nocturnal activity. Desert ecosystem demonstrate resilience and unique productivity strategies despite extreme conditions. Next question is explain the pyramid of energy. The pyramid of energy, also known as energy pyramid or trophic pyramid, illustrates the flow of energy through ecosystem. यार बच्चों जो हमारे पास pyramid of energy है
ये हमें बताता है कि कैसे जो एनर्जी है वो फ्लो करती है थ्रू आउट द इकोसिस्टम। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बात करें पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो इसकी बेस में सबसे पहले प्रोड्यूसर्स होंगे। प्रोड्यूसर में हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स आ जाते हैं, लाइक प्लांट्स और एल्गी जो अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। देन हमारे पास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आ जाता है, जिसमें हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाएंगे, लाइक हर्बीवोर्स जो कि डायरेक्टली फीड करते हैं ऑटोट्रॉफ्स को, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स और डियर। देन सेकंड ट्रॉफिक लेवल आ जाता है, जिसमें हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, जिनको हम कार्निवोर्स कहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग्स और बर्ड्स जो हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ट्रॉफिक लेवल आ जाता है, जिसमें हमारे पास टर्शियरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। दीज आर टॉप प्रीडेटर्स, फॉर एग्जांपल लायन, शार्क्स। एंड देन एपिक्स आ जाता है टॉप, विच आर डिकम्पोजर्स which break down organic matter. Key principles: energy loss, 90 to 95% एनर्जी लॉस बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स। ओके बच्चों, जब एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी फ्लो करती है नहीं, तो ये नहीं है कि 100% ट्रांसफर हो जाए नेक्स्ट में। ठीक है। बट 90 टू 95% जो एनर्जी है वो लॉस हो जाती है, जो नेक्स्ट के पास जाएगी वो बहुत कम जाएगी। ठीक है। ओनली 10 to 5%। ठीक है। ये किस वजह से होता है कि कुछ तो जो एनर्जी जो होती है ना, एक ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म है वो खुद यूटिलाइज कर लेगा, कुछ लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में। तो जो बहुत कम परसेंटेज होती है, अमाउंट होती है, अबाउट 5 to 10%, वो नेक्स्ट को ट्रांसफर होती है। एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू द नेक्स्ट। बायोमास डिक्रीज, बायोमास डिक्रीजेज एज यू मूव अप द पिरामिड। रीजंस फॉर एनर्जी लॉस, ये एनर्जी लॉस क्यों होती है, इसकी रीजंस क्या है? मेटाबॉलिज्म, एनर्जी यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन, के वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ वो एनर्जी यूज कर लेते हैं अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए, लाइक ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। उसके अलावा हीट लॉस, कुछ एनर्जी है जो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाती है। वेस्ट प्रोडक्शन, एनर्जी लॉस थ्रू वेस्ट। अगर हम पैरामिड्स की बात करें तो थ्री टाइप्स ऑफ पैरामिड्स होते हैं हमारे पास: पैरामिड ऑफ एनर्जी, पैरामिड ऑफ बायोमास एंड पैरामिड ऑफ नंबर। इंपॉर्टेंस क्या है इसके हमारे पास? इकोसिस्टम अंडरस्टैंडिंग, एनर्जी फ्लो विजुअलाइजेशन एंड कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए हमारे पास ग्रास आएगी, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रॉफ है। देन इंसेक्ट्स आ जाते हैं, देन रैबिट, देन हॉक। अगर ओशन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, देन जूप्लैंक्टन्स, देन फिशीज एंड देन शार्क। अगर हम फ्रेश इकोसिस्टम की एग्जांपल लें तो ट्रीज, ट्रीज के बाद एनर्जी कहाँ पे जाएगी, नेक्स्ट लेवल डियर, देन वुल्व्स एंड देन बियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। तो पहले हम देखते हैं सक्सेशन क्या है। द प्रोसेस ऑफ इकोसिस्टम रिकवरी एंड डेवलपमेंट आफ्टर डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड सक्सेशन। क्या है बच्चों, इकोसिस्टम की रिकवरी का या डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है डिस्टर्बेंस के बाद, उसको हम कहते हैं सक्सेशन। तो दो टाइप की सक्सेशन होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब इनमें हम डिफरेंस देखेंगे। प्राइमरी सक्सेशन begins at bare lifeless trade, दो soil और vegetation। कह रहा है कि ये जो प्राइमरी सक्सेशन है ये स्टार्ट होती है बेयर लैंड के ऊपर। ठीक है। जिसके ऊपर पहले कोई वेजिटेशन नहीं है, कोई सॉइल नहीं है। दो प्रीवियस इकोसिस्टम एग्जिस्टेड और वाज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ऐसे सॉइल के ऊपर प्राइमरी सक्सेशन होती है जिसके ऊपर पहले कोई इकोसिस्टम नहीं था, या अगर था भी तो वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। सॉइल फॉर्मेशन अकर सिमिल्टेनियसली विद वेजिटेशन एस्टेब्लिशमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो पायोनियर स्पीशीज फॉर एग्जांपल लाइकन, मोसिस कोलोनाइज करती है। ग्रेजुअल साइड डेवलपमेंट थ्रू वेदरिंग एंड स्लो प्रोसेस सेंचुरीज टू मिलेनिया। एक तो होता है कि सबसे पहले इसको जो बेयर लैंड है उसमें लाइकस या मोसिस जो है उसको कोलोनाइज करती है, फिर आस्ता आस्ता साइड डेवलपमेंट होना शुरू होती है वेदरिंग की प्रोसेस के थ्रू, और ये एक स्लो प्रोसेस है जिसमें सेंचुरीज लग सकती है। एग्जांपल्स अगर बात करें प्राइमरी सक्सेशन की, वोल्केनिक आइलैंड फॉर्मेशन, ग्लेशियर रिट्रीट एंड ड्यूली एक्सपोज्ड रॉक सरफेसेस। स्कैडी सक्सेशन क्या होती है? occurs in area with remaining soil and vegetation. Previous ecosystem was disturbed but not completely destroyed. Recovery builds upon existing soil and vegetation. Characteristics की बात करें तो ये फास्ट रिकवरी है, years to decades. Existing soil and vegetation facilitate regrowth and involves replacement of dominant species. Examples are forest regeneration after fire, कि देखिए अगर कहीं पे जो फॉरेस्ट है उसमें फायर लगी, आग लगी है। ठीक है।
तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे जो वेजिटेशन है वो लॉस हो गया, लेकिन वो रीजनरेट कर देगा विद इन ईयर्स। अबैंडन्ड एग्रीकल्चरल लैंड एंड कोस्टल ड्यू रिस्टोरेशन। की डिफरेंसेस क्या है दोनों के बीच में? इनिशियल कंडीशंस की अगर आप बात करें, प्राइमरी में जो होता है वो बैरन होती है, सेकेंडरी में एग्जिस्टिंग सॉइल होती है, ठीक है, पहले से मौजूद होती है। सॉइल डेवलपमेंट की बात करें, प्राइमरी में सिमुल्टेनियस, सेकेंडरी में प्री एग्जिस्टिंग, कि उसमें जो वेजिटेशन के साथ साथ ही सॉइल बन रही होती है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन में वो पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है। रिकवरी रेट का बात करें तो प्राइमरी स्लो है जबकि सेकेंडरी फास्टर है। अब अगर हम सिमिलैरिटीज की बात कर ले दोनों में, प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन में, both involve ecosystem recovery, both exhibit sequential changes in species composition, both lead to increased biodiversity. Next question is, what is net primary productivity (NPP)? Net primary productivity measures the rate at which plants and other photosynthetic organisms produce net biomass excluding respiration. अगर हम इसका फार्मूला की बात करें, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को, तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू होती है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी माइनस रिस्पायरेशन आर। कंपोनेंट्स की बात करें तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल कार्बन फिक्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, वो जीपीपी है हमारे पास। और रिस्पायरेशन क्या है? एनर्जी यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। एनपीपी रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, amount of energy available for heterotrophs, basis for ecosystem food web। यूनिट्स की बात अगर हम करें, ग्राम्स ऑफ कार्बन पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, मेगा जूल्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर। फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एनपीपी आर लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, वाटर अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। एनपीपी वेरिएशंस इन डिफरेंट इकोसिस्टम। अब देखिए डिफरेंट इकोसिस्टम में इसकी जो ये वेरी करेगी एनपीपी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें तो 100 to 2000 ग्राम्स है पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, जबकि मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो 50 to 500 है। फ्रेश इकोसिस्टम की बात करें 100 to 1000 ग्राम है। एग्जांपल्स आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट विच हैव हाईएस्ट एनपीपी राउंड अबाउट 2000 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, डेजर्ट लो एनपीपी अबाउट 100 ग्राम, ओशंस वेरिएबल होती है बिटवीन 50 to 500 ग्राम। It is crucial for understanding ecosystem functioning, carbon cycling, and climate regulation. Next question is, explain the term biosphere. The biosphere is the global sum of all ecosystems on Earth encompassing all living organisms and their interactions with the physical environment. कह रहे प्लेनेट अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स हैं उन सबको कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है इसके बायोस्फीयर के? लिथोस्फीयर, hydrosphere, atmosphere, and biomes. Characteristics: it supports life, interconnected system, dynamic and constantly changing, and self-regulating. सब डिवीजन्स की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम इसमें आ जाता है, बायोम्स आ जाते हैं एंड बायोजियोकेमिकल साइकिल्स आ जाती हैं। फंक्शंस क्या है इसके? इट प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, रेगुलेट क्लाइमेट, साइकिल न्यूट्रिएंट, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी बायोस्फीयर की? इट सस्टेन्स लाइफ ऑन अर्थ, maintain ecological balance, and provide ecosystem services, clean air, water and soil. थ्रेट्स की बात करें तो क्लाइमेट चेंज है, डिफरेस्टेशन है, पोल्यूशन है और ओवर एक्सप्लॉइटेशन है रिसोर्सेज की। कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या है? सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक पार्क्स और रिजर्व्स, climate change mitigation and ecological restoration. Examples are forest, Great Barrier Reef, Arctic tundra, human-made ecosystem like agriculture or urban. The biosphere is a complex, interconnected system essential for life on Earth. So students, हमारी शार्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। If you have any doubts, you can ask in the comment section. Please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.